عزیز آباد میں واقع کراچی کے چند تاریخی امام بارگاہوں میں ایک نام بوتراب امام بارگاہ کا بھی ہے۔ سب سے پہلے قیام جو ہے ہمارے بوتراب اسکاؤٹس کنٹرول کمیٹی کا ہوا 1952 میں، اور قیام پاکستان کے فوراً بعد جو مخلصین تھے انہوں نے اس بات کو محسوس کیا کہ شیعہ قوم کے لیے ان کی ضرورت کے مطابق کچھ کام کیا جائے، اور یہ تنظیم جو ہے مختلف مرحلوں سے گزرتی رہی، کبھی کھارا در، کبھی لیاقت آباد اور دوسرے کراچی کے علاقوں میں رہی، اور اس کے بعد یہ تنظیم مختلف مرحلوں سے گزرتے ہوئے یہاں پہنچی جب اسکیم 16 کے تحت یہ علاقہ آباد ہوا۔ دل بنے فرش ازا جب ازا خانہ سجے تو دل بنے فرش ازا جب ازا خانہ سجے تو۔ بوتراب امام بارگاہ صرف امام بارگاہ ہی نہیں، اس میں 3 مختلف ادارے کام کر رہے ہیں۔ یہ ادارہ غلامان بوتراب پاکستان کے نام سے جانا جاتا ہے، جس میں 3 ادارے مل کر کام کرتے ہیں۔ ایک بوتراب اسکاؤٹس کنٹرول کمیٹی، دوسری بوتراب امام بارگاہ جامع مسجد ٹرسٹ، اور تیسری فقہ جعفریہ رابطہ کمیٹی۔ اصل میں امام بارگاہ جو تنہا نہیں ہے، ہمارے ایک پوری باڈی ہے جو ادارہ غلامان بوتراب پاکستان کے نام سے ہے، اور اس کے اندر 3 ذیلی باڈیاں ہیں۔ ایک بوتراب اسکاؤٹس کنٹرول کمیٹی، ایک بوتراب جامع مسجد امام بارگاہ ٹرسٹ، اور دوسرے ہے فقہ جعفری رابطہ کمیٹی۔ ہمارے سب ہی اپنی مجلس جب قیام پاکستان کے بعد یہ محسوس کیا گیا کہ شیعہ قوم کے لیے کچھ کام کیا جائے تو 1952 میں بوتراب اسکاؤٹس کنٹرول کمیٹی کی بنیاد رکھی گئی، اور پھر یہاں تعمیرات کا آغاز ہوا۔ بوتراب اسکاؤٹس بلا تفریق قوم و مذہب انسانیت کی خدمت میں پیش رہتے ہیں۔ قطع اراضی جو اس وقت کے گورنمنٹ کے رولز سے اس کے مطابق اس کو حاصل کیا گیا، اور پھر یہاں یہ جامع مسجد کا تعمیرات ہوئیں، اور امام بارگاہ کی تعمیر ہوئی، بوتراب اسکول کی تعمیر ہوئی، زرعی مبارک حضرت بی بی زینب سلام اللہ علیہ کی تعمیر ہوئی، اور دیگر تعمیرات ہوئیں، جس کے اندر جتنی بھی تعمیرات ہیں یہ ٹرسٹ کی ملکیت ہے۔ پیاسے اسیروں کی تھکن زندہ رہے، اے عزادار حسینی یہ چلن زندہ رہے، ہذا خانے سجانے کی لگن زندہ رہے۔ 1960 کے بعد اس امام بارگاہ کی پکی تعمیر کی گئی اور لوگوں نے دل کھول کر عطیات دیے۔ 1960 میں ہی نماز جمعہ کا انعقاد بھی کیا گیا۔ یہاں پر سن 60 کے بعد تعمیرات پکی کی گئیں، پہلے کچی تعمیرات تھیں، پھر پکی تعمیرات کا آغاز ہوا، اور یہاں پر امام بارگاہ بوتراب ہال تقسیم ہوا، جس میں ہمارے پرمنٹ ٹرسٹی جناب حاجی محمد عزیز ڈوسا، ان کے والد جناب حاجی اسماعیل ڈوسا اور ان کے بھائی جناب نثار ڈوسا صاحب یہاں کے ٹرسٹی رہے۔ انہوں نے اس ہال کو تعمیر کیا، مسجد کی تعمیر میں بھی حصہ لیا، اور یہ بوتراب جامع مسجد سے ملحق میت خانہ بھی انہوں نے تعمیر کیا، حاجی ڈوسا فیملی نے۔ نماز جمعہ کا قیام 1960 سے شروع ہوا ہے، اور ماشاءاللہ اس میں تعداد جو ہے وہ 3 سے 4 ہزار
भी होती है और इससे कभी कभी बढ़ भी जाती है। थी मौत आसान, जिंदगी दुश्वार थी। जिस जगह थी मौत आसान, जिंदगी दुश्वार थी। हाँ वहाँ यहाँ गुस्लो कफन की सहूलत मुफ्त दी जाती है और अब मुस्तहकीन के लिए बिला मुआवजा कब्र का इंतजाम भी किया जाता है। हमारे अपने नौजवानों ने, जो हमारी क़ुव्वत हैं, हमारा बाजू हैं, उन लोगों ने जब कोविड-19 का ज़्यादा ज़ोर हुआ तो उन्होंने हमसे दरख्वास्त की कि हम इस सिलसिले में काम करना चाहते हैं। तो उन्होंने इंतहाई दिलजमी के साथ, खुलूस के साथ यहाँ काम किया। और इस वक्त जो मौजूद शक्ल देख रहे हैं आपको, जो जदीद आलात से ये आरास्ता है, ये उन सब नौजवानों का काम है। उन लोगों ने किया और वो तनदही से, बग़ैर किसी लालच के काम कर रहे हैं। बूतराब ट्रस्ट ने ये ज़रूर किया है इसमें कि इस वक्त गुस्लो कफन जो है वो फ्री कर दिया है। और हम ये भी इंतज़ाम कर रहे हैं कि जो लोग मुस्तहिक़ीन हैं या लावारिस हैं, उनके लिए कब्र ख़रीदने के लिए भी पैसों का इंतज़ाम जो है वो ट्रस्ट की जानिब से किया जाए। अल्हम्दुलिल्लाह ये सारे लोग मिलकर सारा काम करते हैं। और मैं इस वक्त उन तमाम नौजवानों की यहाँ पर तारीफ़ करूँगा कि वो शीर व शकर की तरीके से हाथ में हाथ डालकर, कदम से कदम मिलाकर काम कर रहे हैं। ये हमारी ताकत और क़ुव्वत है। के साए में सफर करते रहे। मातम के साए में सफर करते रहे। मातम के साए में सफर करते रहे। हर यहाँ बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता ज़ाकिरीन भी तशरीफ़ ला चुके हैं, जो मुहर्रम और मुख्तलिफ अय्याम में मजालिस पढ़ चुके हैं। बूतरा इमाम बारगाह में मजालिस का सिलसिला जो है वो चहारदा मासूमीन के सिलसिले में होता रहता है। हमारे अपने इंतज़ाम के तहत हम तमाम चहारदा मासूमीन की विलादत, सादत और मजालिस और महफ़िल का इनेकाद करते हैं। और बड़ा अल्लाह का करम है कि यहाँ पर बड़े बड़े मारूफ ज़ाकिरीन ने ख़िताब किया है, जिसमें अल्लामा रशीद तरावी मरहूम, अल्लामा इरफान हैदराबादी मरहूम, अल्लामा अब्बास हैदराबादी मरहूम और बहुत से दीगर उलमा, अल्लामा अब्दुल हकीम बुतरावी मरहूम, इन्होंने यहाँ ख़िताब किया है। और उसमें शोहरत भी पाई है और काफ़ी बड़े इज्तिमात से उन्होंने यहाँ ख़िताब किया है। लेकिन इसमें ख़ास बात हमारे पास ये है कि हमारे इलाके में अल्लाह का करम ये है कि बहुत ज़बरदस्त कोऑपरेटिव लोग हैं। हमारे अहले महल्ला जितने मुसलमानान आलम हैं वो हमारे साथ ताउन भी करते हैं। और यहाँ किसी किस्म की भी तफरीक या कशीदगी या किसी किस्म की भी एंटी कोई कार्रवाई किसी ज़माने में भी नहीं हुई। ये एक पुरअमन इलाका है और अल्लाह का बड़ा फजल व करम है कि यहाँ तमाम अहले महल्ला, फिर यहाँ के महल्ले के साथ साथ हमारे जो सरकारी अहलकार हैं, ख़ास तौर से हमारा थाने के लोग, पुलिस के लोग, सिंध पुलिस, रेंजर्स, ये हमारे साथ बहुत ताउन करते हैं। और पाक फ़ौज को भी हम सिलसिले में सलाम करते हैं कि उनके साथ जब भी राब्ता हुआ है उन्होंने हमें कभी मायूस नहीं किया। हमें तो समझ में भी नहीं आता, चांद न था, सूरज न था, सितारे न थे, तो आपने इसको बनाया। अब हमें क्या पता चले कि ये 6 दिन काय की हैं? तो ये खिलकत है। इन फिर समझो, अला लहुल खल्क वल अम्र, अल्लाह के लिए क्या है? खल्क और अम्र। मादियत में तदरीज होती है, मैं नहीं समझा सका। फिर करीब आकर बात करता हूँ कि अल्लाह ने जब इंसान का जिक्र किया तो इरशाद फरमाया सूरत अल मोमिनून में, वलक़द खलक़नल इंसान मिन सुलालतिन मिन तीन सुम्मा जअलनाहु नुतफ़तन फ़ी क़रारिन मकीन। जश्न अनवार शाबान की मुनासबत से कराची के बूतराब जामे मस्जिद और इमाम बारगाह में मुहिब्बान यूसुफ करबला की जानिब से महफिल मिलाद का इनेकाद किया गया। महफिल में शौकत रजा शौकत समेत बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता और शहर के मारूफ शोरा और सनाख्वां ने गुलहाए अकीदत पेश किए। महफिल में लोगों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। सलामत रहे,
जिस जगह थी बूतराब पब्लिक स्कूल के नाम से एक स्कूल भी तामीर किया गया है, जहां मोंटेसरी से मैट्रिक तक की तालीम दी जाती है और एक दीनी मदरसा भी कायम किया गया है, जहां ज़ेरे सरपरस्ती जनाब मोहम्मद अली नकवी और क़िबला अल्लामा रज़ी जाफरी साहब बच्चों को दीनी तालीम के साथ साथ ज़ाकिरी भी सिखाते हैं। दुश्वार थी हाँ वहाँ ज़हर बूतराब पब्लिक स्कूल कायम किया है जो 3 मंजिला है और अल्हम्दुलिल्लाह उसमें तहखाना भी मौजूद है जिसमें मोंटेसरी क्लासेस लगाई जाती हैं और बच्चों को इंग्लिश मीडियम में तालीम दी जाती है। ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से रजिस्टर्ड है। इस क़याम में हमारे एक ट्रस्टी जाहिद जाफरी साहब का काफ़ी कंट्रीब्यूशन है और अल्लाह ताला उनको जज़ा खैर दे कि ये कौम को एक बिल्डिंग मिल चुकी है। अब हाल ही में हमने इन 2 सालों के अंदर दीनी मदरसा भी बूतराब में कायम किया जिसकी निगरानी जो है मौलाना अली हैदर साहब क़िबला फरमाते हैं। ज़ेर सरपरस्ती जनाब मौलाना मोहम्मद नकवी साहब क़िबला और मौलाना रज़ी जाफ़र साहब क़िबला के, जिसमें दीनी तालीम के साथ साथ हम उनको ज़ाकरी भी सिखाते हैं और हम उनको उलमा बनाने के लिए 2.5 साल कोर्स भी करते हैं और उनको अगर वो काबिल हो जाएं, पास हो जाते हैं तो उनको अमामा भी देते हैं। के हाथों में रहे दिल में ताबूते सकीना की चुभन जिंदा रहे। हम सिर्फ इतना कहेंगे कि फ़र्द कायम रब्त मिल्लत से है, तन्हा कुछ नहीं, मौज है दरिया में और बैरून दरिया कुछ नहीं। अल्लाह ताला इस इदारे को नज़र बद से बचाए। यहाँ ट्रस्टी हो, पब्लिक हो, नमाजी हो, नौजवान हो, महल्ले के अफराद हों, सरकारी एजेंसियाँ हों, सब की सब अल्लाह का बड़ा करम और फजल करम है कि सब बाहिमी इत्तेहाद और मोहब्बत के साथ काम करते हैं। अगर किसी किस्म का इख्तलाफ भी राय भी हो जाता है तो किसी को होता है तो आपस में बैठकर हम इसको तय कर लेते हैं। मातम के साए में सफर करते रहे हर बयाज़े। खुदावंदे मुताल इस इदारे को इसी तरह तरक्की अता करे और ये उम्मते मुस्लिमा को इसी तरह इल्म के दरिया से सैराब करता रहे। सरवर हिला कर रहे हैं ये दुआ ज़ेरे अलम सरवर हिलाल। ऐ खुदा ये गम बफ़ैज़े पंजतन जिंदा रहे।